ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ دادی جان، آپ کیوں اس افریقن گینڈے سے میری شادی کروانے پر تلی ہیں؟ زمل کے کمرے سے بلند ہونے والی چیخ نے پورے بنگلے کو ہلا کر رکھ دیا۔ بیگم سلیمہ بیگ عرف دادی جان، جو لان میں بیٹھ کر گلاب کے پودے کے کانٹے تراش رہی تھی، اینک کے اوپر سے نظریں اٹھا کر بولی، افریقن گینڈا؟ یہ کون سا نیا رشتہ دار ہے بھائی؟ زمل جھپٹ کر نیچے آئی، ہاتھ میں موبائل تھا اور بال بکھرے ہوئے۔ جی وہی فرقان جسے آپ نے میرے لیے پسند کیا ہے۔ آپ جانتی ہیں وہ کالے منہ والا چھپ چھپ کر فیس بک پر موٹی موٹی آنٹیوں سے رومانٹک باتیں کرتا ہے۔ وہ تقریباً روحان سی ہو گئی تھی۔ دادی جان نے کانٹے کی کینچی ایک طرف رکھی۔ زمل زبان سنبھال کر بات کرو، وہ شریف لڑکا ہے۔ شریف؟ زمل کے منہ سے نکلا، شریف لوگ آنٹیوں کو؟ آپ کی آنکھوں میں چاندنی ہے نہیں لکھتے دادی جان۔ دادی جان نے گہری سانس لی۔ مجھے تو لگتا ہے تمہیں حسد ہو رہا ہے۔ حسد؟ میں اس افریقن گینڈے سے؟ زمل نے اپنے بالوں کا جوڑا بگاڑ دیا۔ میں تو اسے بلاک بھی نہ کرتی، صرف اس لیے کہ کہیں وہ کسی اور کو چھیڑنا نہ شروع کر دے۔ اس لمحے لان کے دروازے سے ایک بھاری آواز گونجی، میں افریقن گینڈا ہوں؟ زمل نے پلٹ کر دیکھا تو فرقان کھڑا تھا، سیاہ رنگت، چوڑے شانے، سفید قمیض اور چہرے پر وہی مخصوص شرارتی مسکراہٹ۔ اس نے دھیرے سے کہا، واہ زیمل، پہلی ملاقات میں ہی محبت کا اتنا انوکھا نام دیا ہے تم نے۔ زیمل کے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکلا۔ دادی جان کھلکھلا کر ہنس پڑی، لو بھائی، آ گیا تمہارا گینڈا، اب دیکھو تو کتنا سونا ہے۔ سونا؟ دادی جان آپ کو اینک بدلنی چاہیے۔ زمل بڑبڑائی۔ فرقان قریب آیا، اس کی آواز بھاری مگر شوخ تھی۔ دادی جان، میں آیا تھا آپ کی اجازت سے، لیکن لگتا ہے زیمل بی بی تو پہلے ہی میرا پوسٹ مارٹم شروع کر چکی ہیں۔ تمہیں کسی نے اجازت نہیں دی تھی آنے کی؟ زمل نے فوراً کہا، مجھے خود اپنے حق کی اجازت لینی آتی ہے۔ وہ بولا، ویسے بھی تم نے مجھے فیس بک پر خود ہی فرینڈ ریکویسٹ بھیجی تھی۔ جھوٹ۔ زمل کے ہاتھ میں پکڑا موبائل لرز گیا۔ وہ میرا کزن ہادی تھا جس نے مذاق میں، ہاں، اور تم نے بھی مذاق میں ہارٹ والا ری ایکشن دیا تھا نا؟ دادی جان نے کھنگارتے ہوئے کہا، لو بھائی، دل کے ایموجی کا رشتہ دل سے ہوتا ہے، نکاح کا وقت طے سمجھو۔ گھر کا ماحول طوفان بن چکا تھا۔ زیمل اپنے اوپر کمرے میں دروازہ بند کر کے بیٹھ گئی۔ سامنے میز پر چاکلیٹ، فیس کریم اور اس کا لیپ ٹاپ بکھرا تھا۔ اس نے خود سے کہا، میں اس گینڈے سے شادی نہیں کروں گی، چاہے پوری کائنات مجھے افریقن دلہن بنا دے۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ کون؟ افریقن گینڈا، نکلو یہاں سے۔ دادی جان نے کہا ہے تم سے بات کر لوں۔ دادی جان نے کہا ہوگا، مگر میں نہیں چاہتی۔ دروازہ کھلا نہیں تھا، مگر فرقان کی آواز میں مسکراہٹ تھی۔ تمہیں پتا ہے جب سے تم نے مجھے گینڈا کہا ہے، میں نے اپنے واٹس ایپ کا نام بدل کر زیمل کا گینڈا رکھ لیا ہے۔ زیمل کا منہ کھل گیا۔ کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ شرم آتی تھی، لیکن تمہیں دیکھنے کے بعد ختم ہو گئی۔ او خدا! وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اگلے دن صبح ناشتے کی میز پر دادی جان، زیمل اور فرقان موجود تھے۔ دادی جان پراٹھے پلٹتے ہوئے بولی، بیٹا فرقان، تمہیں تو کچھ دن زیمل کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے، شادی کے بعد تو مصروفیات بڑھ جائیں گی۔ جی دادی جان۔ فرقان نے آنکھ ماری، میں تو ابھی سے پریکٹس کر رہا ہوں کہ زیمل کا شوہر بن کر کیسے جینا ہے۔ تمہارا جینا مشکل ہو جائے گا، زیمل نے زیر لب کہا۔ مشکل کام ہمیشہ دلچسپ ہوتے ہیں، وہ مسکرا کر بولا۔ دادی جان، زیمل نے چیخ کر کہا، دیکھیے نا، یہ میری باتوں میں عشق جھونک رہا ہے۔ اچھا تو تمہیں محسوس ہو رہا ہے نا؟ فرقان نے فوراً کہا۔ چپ کرو، دادی جان ہنستے ہوئے بولی۔ بچوں، تم دونوں کی لڑائیاں دیکھ کر مجھے اپنے زمانے کی فلمیں یاد آ جاتی ہیں۔
हीरो हीरोइन पहले लड़ते हैं, फिर मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते हैं। मैं कभी गिरफ्तार नहीं होंगी, जीमल ने डटकर कहा। याद रखना जीमल, मोहब्बत कैद नहीं होती, मगर कैदी जरूर बना लेती है, फुरकान ने मायने खेज लहजे में कहा। उसी दिन शाम को जीमल अपने दोस्तों के साथ कैफे गई। वो सब उसका दिल बहलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खुला फुरकान अंदर दाखिल हुआ। उसने टेबल पर हाथ रखकर कहा, अफ्रीकन गैंडा फिर से हाजिर है। और उसके दोस्त हंस पड़े। वाह भाई, तुम तो फैन फॉलोइंग लेकर आए हो। जीमल ने दांत पीसते, ये तुम्हारी हरकतें हैं जो मीम्स बनने के काबिल हैं। मेम बनूं या मियाँ, दोनों तुम्हारे ही नाम पर होंगे, वो आराम से बोला। वेटर, जीमल ने गुस्से से कहा, इसे यहां से निकालो। मैं जा रहा हूं, मगर एक बात याद रखना जीमल, तुम्हारे गुस्से में भी प्यार है, वो जाते जाते सरगोशी में बोला। तुम्हारे बाल आज बहुत अच्छे लग रहे हैं, खास तौर पर जब तुम गुस्से में इन्हें ठीक करने की कोशिश करती हो। जीमल के चेहरे पर पहली बार उलझन के साथ लाली आ गई। रात के वक्त वो बालकनी में खड़ी थी, आसमान में चांद रोशन था। उसने मोबाइल उठाया, फुरकान का नाम ऊपर दिखाई दे रहा था। वो थोड़ी देर तजब्जुब में रही, फिर कॉल रिसीव की। क्या है? बस ये देखने के लिए फोन किया कि तुम अभी भी मुझसे नाराज हो या चांदनी में कुछ नरमी आई है। फुरकान, तुम्हें पता है तुम हद से ज्यादा बोलते हो। हाँ, मगर तुम हद से ज्यादा खूबसूरत लगती हो जब गुस्से में हो। जीमल ने मोबाइल बंद कर दिया, मगर मुस्कुराहट छुप ना सकी। फुरकान अगली सुबह बहुत खुशगवार मूड में था। दादी जान के ड्राइंग रूम में बैठे उसने चाय का कप उठाया और बड़े इत्मीनान से जीमल के आने का इंतजार करने लगा। दादी जान के चेहरे पर वही फातिहाना मुस्कुराहट थी जो किसी जनरल के होठों पर फतह के बाद आती है। बेटा फुरकान, आज तुम्हें खास बात करनी है जीमल से। जी दादी जान, मगर जीमल तो मुझसे ऐसे भागती है जैसे मैं सच में जंगल का गैंडा हूं। बेटा, भागने वालों के पीछे हमेशा वही दौड़ते हैं जिन्हें पकड़ने का जुनून हो, दादी जान ने चाय की चुस्की लेते कहा। उसी लम्हे जीने से जीमल उतरी, गुलाबी कुर्ता, खुले बाल और वही नागवारी चेहरे पर। अब क्या प्लान है दादी जान? कल तो आपने मुझे अफ्रीका ब्रांच का रिश्ता समझा था, आज क्या अर्जेंटाइन वाला बिल्ला बुला लिया है? जीमल, दादी जान ने मसनूई गुस्से से कहा। फुरकान तुमसे बात करना चाहता है, तुम बैठो। जीमल ने आंखें तंग करके फुरकान को देखा। जल्दी बोलिए, मेरे पास वक्त कम है, फुरकान ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं सोच रहा था, चूंकि हम दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो क्यों ना एक जाली मंगनी कर ली जाए। क्या? जीमल उछल पड़ी। तुम पागल हो गए हो? जाली मंगनी? हाँ, ताकि दादी जान खुश हो जाएं, और जब वो मुतमईन हो जाएं तो हम सुकून से अलग हो जाएंगे। जीमल ने गौर से देखा। यानी तुम चाहते हो मैं तुम्हारी जाली मंगेतर बनूं? हाँ, और तुम चाहो तो मैं जाली तौर पर तुमसे झगड़ा भी करता रहूंगा। वो मुस्कुराया। रियलिस्टिक लगना चाहिए ना? दादी जान ने तालियां बजाई। वाह, क्या जबरदस्त आइडिया है, तुम दोनों बिल्कुल फिल्मी जोड़े लगोगे। जीमल ने कुर्सी से उठकर कहा। मैं किसी फिल्म में काम नहीं कर रही दादी जान, मगर किस्मत की फिल्म में तुम हीरोइन जरूर हो, फुरकान ने नरमी से कहा। जीमल का चेहरा लम्हा भर के लिए संजीदा हुआ, फिर हंसी छुपाते बोली, ठीक है, जाली मंगनी सही, लेकिन याद रखना, जाली मोहब्बत नहीं। पूरे घर में मंगनी की तैयारियां चल रही थी। दादी जान तो खुशी से दुआओं के फूल बरसा रही थी। जीमल आईने के सामने खड़ी अपने बाल दुरुस्त कर रही थी और खुद से बड़बड़ा रही थी। ये सब ड्रामा है, बस एक ड्रामा। मैं उस गेंडे से मोहब्बत नहीं कर सकती। दरवाजे पर दस्तक हुई। आ सकता हूं? फुरकान की आवाज में वही शोख लहजा। नहीं, शुक्रिया, मैं आ रहा हूं। वो अंदर दाखिल हो गया। फुरकान ने जीमल को सोने के झुमके पहनते देखा तो मुस्कुरा दिया। क्या जाली मंगेतर इतनी असली लग सकती है? जीमल ने आईने में उसकी झलक देखी। तुम हद से ज्यादा बोलते हो और तुम हद से ज्यादा दिलकश लगती हो, शायद इसीलिए बोलने को दिल चाहता है। बस करो, वरना जाली मंगनी से पहले
असली थप्पड़ खाओगे। फुरकान हंसने लगा। तुम्हें पता है मैंने दादी जान से कहा है हमारी मंगनी की फोटो इंस्टाग्राम पर डाल दूंगा। क्या? नहीं, हरगिज नहीं। क्यों, तुम्हें शर्म आ रही है अपने जाली फखर पर? नहीं, बस मैं नहीं चाहती कोई समझे कि मैं किसी अफ्रीकन गैंडे के साथ वाकई मंगेतर हूं। फुरकान ने एक कदम आगे बढ़ाया। तुम्हें पता है जीमल, जब तुम मुझे गैंडा कहती हो ना, मुझे अजीब सा सुकून मिलता है। शायद इसलिए कि कम से कम तुम मेरा नाम तो लेती हो। जीमल ने नजरें चुरा ली। बेवकूफ। सजा हुआ घर, दादी जान की पसंदीदा गुलाबी गुब्बारे और सब मेहमान हैरान कि जिमल जैसी मगरूर लड़की आखिर इस काले मगर खुश अखलाक लड़के पर कैसे फिदा हो गई। फुरकान ने सफ़ेद कुर्ता पहना था और चेहरे पर एतमाद की चमक थी। जिमल उसके पास आकर खड़ी हुई। याद रखना ये सब एक एक्टिंग है, ज्यादा आंखें ना लड़ाना। अगर आंखें खुद लड़ पड़ी तो मैं क्या कर सकता हूं? वो बोला। दादी जान ने उनके हाथों में अंगूठियां पहनाई, तालियां बजीं, तस्वीरें खिंची और जीमल को लगा जैसे ये सब सच हो रहा है। मुस्कुराओ ना जीमल, दादी जान ने कहा। जाली मुस्कुराहट भी डाल दूं? वो बड़बड़ाई। फुरकान ने आहिस्ता से कहा, तुम्हारी असली मुस्कुराहट दुनिया बदल सकती है, जाली की जरूरत नहीं। जीमल ने एक लम्हे के लिए नजर उठाई और पहली बार उसके चेहरे पर नरमी आई। उस रात जीमल छत पर खड़ी थी, हवा में हल्की खुनकी थी। उसके मोबाइल पर दर्जनों मुबारकबाद के मैसेजेस थे। एक मैसेज फुरकान का भी था। जाली मंगेतर जी, शुक्रिया आपकी मुस्कुराहट के लिए। बस इतना कहूंगा, जाली मंगनी ने मेरा असली दिल चुरा लिया। जीमल ने दिल थाम कर मोबाइल बंद किया, मगर मुस्कुराहट लबों से ना हटी। अगली सुबह दादी जान ने नाश्ते के दौरान ऐलान किया, अब चूंकि मंगनी हो गई है, तुम दोनों कुछ वक्त साथ गुजारो, शॉपिंग, डिनर, जो चाहो करो। मैं चाहती हूं तुम दोनों एक दूसरे को बेहतर समझो। जीमल ने जल्दी से कहा, दादी जान ये सब जाली है, हमें इतना रियल होने की जरूरत नहीं। फुरकान ने मजे से पराठा उठाया। मैं तो जाली भी रियल अंदाज में निभाता हूं। दादी जान ने इत्मीनान से कहा, बस यही जज्बा चाहिए एक रिश्ते में। जीमल ने आहिस्ता से बड़बड़ाया, या खुदा, ये दादी जान और इनका गैंडा मुझे पागल कर देंगे। दोपहर में जीमल और फुरकान शॉपिंग मॉल में मौजूद थे। वो दोनों एक दूसरे के बरक्स थे। जीमल नरम, नफीस और हर चीज में नफासत ढूंढने वाली, जबकि फुरकान बेफिक्री का पैकर, जिसे लगता था जिंदगी एक मजाक है। फुरकान, जरा खामोश रहो, लोग घूर रहे हैं। मैं तो बस तुम्हें देख रहा हूं, लोग खुद घूरना शुरू हो गए। तुम हर बात में मजाक क्यों ढूंढते हो? क्योंकि तुम हर बात में गुस्सा ढूंढती हो। तवाज़ुन रहना चाहिए ना। जिमल हंसी रोक ना सकी। तुम वाकई पागल हो, और तुम वाकई खूबसूरत, जब हंसती हो तो और भी। उसने नजरें चुराई, मगर दिल के किसी गोशे में हलचल हुई। रात को जिमल ने अपनी दोस्त उरूबा को कॉल की। उरूबा, तुम्हें पता है वो गैंडा इतना बुरा नहीं जितना मैं समझती थी। ओहो, कहीं तुम्हें उस जाली मंगेतर से असली मोहब्बत तो नहीं हो गई? नहीं नहीं, जीमल ने फौरन कहा, मगर चेहरे पर हल्की सी लाली छुप ना सकी। मैं बस नहीं जानती क्यों वो अजीब सा अच्छा लगने लगा है। दूसरी तरफ से अरूबा की शरारती हंसी गूंजी। प्यार जाली नहीं होता जीमल, कभी कभी मजाक भी सच बन जाता है। जीमल खामोश हो गई। चांदनी में बैठे फुरकान के मैसेजेस उसके मोबाइल पर झिलमिलाने लगे। मैं ये हरगिज नहीं करूंगी, जीमल ने आवाज बुलंद की। डाइनिंग टेबल पर दादी जान, फुरकान और हादी, जीमल का कजन, मौजूद थे। दादी जान चाय की चुस्की लेते हुए इत्मीनान से बोली, क्यों नहीं करोगी? हनीमून पर मंगेतर को जानने का बेहतरीन मौका होता है। दादी जान, ये मंगनी जाली है, तो हनीमून भी जाली समझ लो। फुरकान ने कुर्सी के साथ टेक लगाई और शोख अंदाज में कहा, वाह दादी जान, आपके ख्यालात दिन ब दिन जदीद होते जा रहे हैं। मेरी जदीद सोच तुम्हें एक अच्छी बीवी दिलाएगी बेटा, और मुझे जेल में डाल देगी, जीमल ने बड़बड़ाते हुए कहा।
دادی جان میں یہ سب نہیں کر سکتی، میں فرقان کے ساتھ کہیں نہیں جا رہی۔ تو پھر سب کو پتہ چل جائے گا کہ تم دونوں کی منگنی جھوٹی ہے۔ یہ جملہ دادی جان نے دھیرے سے کہا مگر اثر آتش فشاں جیسا تھا۔ فرقان نے سر نیچے کیا۔ دادی جان آپ پریشان نہ ہوں، میں سب سنبھال لوں گا، زیمل جائے گی، میں نہیں جاؤں گی۔ فرقان کی آواز میں وہ نرمی تھی جو ضد سے زیادہ یقین رکھتی ہے۔ زیمل خاموش ہو گئی۔ 2 دن بعد اسلام آباد سے مری کی جانب سفر شروع ہوا۔ زیمل نیلی شال میں لپٹی بیٹھی تھی، نظریں کھڑکی سے باہر۔ فرقان ڈرائیونگ کر رہا تھا اور برابر میں مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ کتنی دیر ہے مری پہنچنے میں؟ زیمل نے سد لہجے میں پوچھا۔ 3 گھنٹے اگر تم خاموش رہو، اور 2 اگر ہنس دو۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہاری باتوں پر ہنسوں گی؟ تم پہلے بھی ہنس چکی ہو، دوسری بار زیادہ آسان ہوتا ہے۔ خواب دیکھنا چھوڑ دو، تم خود خواب لگتی ہو، چھوڑنا مشکل ہے۔ زیمل نے رخ موڑ لیا مگر دل دھڑکنے لگا۔ فرقان کی باتیں عجیب تھیں، کبھی زبردستی کی لگتی، کبھی دل کے اندر اتر جانے والی۔ مری پہنچنے پر انہوں نے ایک چھوٹے مگر خوبصورت ریزورٹ میں کمرہ بک کروایا۔ دادی جان نے فون پر سختی سے کہا تھا، بیٹا فرقان تم دونوں الگ کمروں میں رہو گے۔ فرقان نے جواب دیا، جی بالکل دادی جان۔ زیمل چاہے تو خیمہ لگا لے، میں پہاڑ پر سو جاؤں گا۔ زیمل نے سن لیا اور فوراً بولی، تمہیں پہاڑ پر برف میں جمع ہوا دیکھنے میں بہت سکون ملے گا۔ کمال ہے، تمہاری محبت کی شدت دادی جان سے بھی زیادہ ہے۔ برف کے ذروں سے ڈھکی سڑک پر وہ دونوں چہل قدمی کر رہے تھے۔ زیمل نے ہاتھوں میں دستانے پہنے تھے مگر ٹھنڈ کے باوجود چہرے پر نرمی تھی۔ کبھی کبھی لگتا ہے تم واقعی پاگل نہیں ہو، وہ بولی۔ اچھا، باقی وقت کیا لگتا ہے؟ کہ تم افریقن گینڈے سے بھی زیادہ خطرناک ہو۔ فرقان ہنسنے لگا۔ تمہارے منہ سے گینڈا سننا کسی نغمے سے کم نہیں۔ تمہیں اپنی بے عزتی پسند ہے کیا؟ اگر تم کرو تو ہاں۔ وہ چپ ہو گئی۔ کچھ لمحوں بعد برف کا ایک چھوٹا سا گولا فرقان کے کندھے پر لگا۔ یہ کیا تھا؟ میری طرف سے نیک خواہشات، زیمل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ فرقان نے بدلہ لینے کے انداز میں برف کا گولا اٹھایا۔ سنبھل کر رہنا، اب افریقن برفانی گینڈا جاگ گیا ہے۔ وہ دونوں برف کی لڑائی میں ہنس ہنس کر بے حال ہو گئے۔ پہلی بار زیمل کو لگا وہ اس لڑکے سے نفرت نہیں کر سکتی۔ رات کو ریزورٹ کی چھت پر وہ دونوں خاموش بیٹھے تھے، آسمان پر ستارے اور نیچے پہاڑوں پر مدھم روشنی۔ فرقان، زیمل نے نرمی سے کہا، ہم دونوں نے یہ سب جعلی کیا تھا نا؟ ہاں۔ پھر تم اتنے اصلی کیوں لگنے لگے ہو؟ فرقان مسکرایا۔ شاید اس لیے کہ میں جعلی منگیتر نہیں ہوں، بس جعلی موقع ملا ہے۔ سچ تو یہ ہے زیمل، تم میری دعا تھی جو غلط پتے پر پہنچ گئی۔ زیمل کے لب تھر تھر آ گئے۔ اور میں تمہارے لیے بد دعا تھی شاید۔ ممکن ہے، مگر بعض بد دعائیں بھی قسمت میں خوشیاں لے آتی ہیں۔ ہوا تھمی، دل کی دھڑکنیں تیز ہوئیں۔ وہ دونوں کچھ دیر خاموش رہے، پھر فرقان نے آہستہ کہا، تمہاری آنکھوں میں جو الجھن ہے نا، وہی میرا جواب ہے۔ زیمل نے نظریں جھکا لی۔ فرقان، یہ سب مذاق تھا، تم سیریس مت ہو جانا۔ میں مذاق کو سچ میں بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہوں، بس تم ہاں کہنا۔ زیمل کی آنکھوں میں نمی محسوس کی، وہ خود سے الجھ گئی تھی۔ دادی جان کا فون آیا۔ بیٹا سب خیریت؟ جی دادی جان، زیمل تو خوش ہے، بلکہ اب برف سے بھی زیادہ نرم لگ رہی ہے۔ زیمل نے موبائل چھینا۔ دادی جان، یہ مجھے چھیڑ رہا ہے۔ چھیڑنے دو بیٹا، شادی سے پہلے ایسے ہی ہوتا ہے۔ فرقان نے مسکراتے ہوئے کہا، سنیے زیمل، دادی جان کے سامنے تمہارے خلاف کچھ نہیں بول سکتا۔ تمہیں میری حمایت کی ضرورت بھی نہیں۔ ضرورت ہے، دل کی گواہی تمہارے نام پر ہے۔ مری کے مال روڈ پر لوگوں کا شور، برف باری اور بھنے ہوئے مکئی کے بھٹوں کی خوشبو۔ فرقان نے گلاب خریدا۔ یہ کس لیے ہے؟ ایک ضدی لڑکی کے لیے جو کہتی ہے وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے۔ زیمل نے ہنس کر گلاب لے لیا۔ یہ تمہاری خوش فہمی ہے۔ محبت ہمیشہ خوش فہمی سے شروع ہوتی ہے، پھر ختم کہاں ہوتی ہے؟
شاید کسی زیمل کے مسکرانے پر۔ زیمل خاموش ہو گئی۔ وہ دونوں ریزورٹ کے لان میں بیٹھے تھے۔ فرقان نے کہا، زیمل ایک بات کہوں؟ ابھی مت کہو، شاید جواب دینے کے لیے وقت چاہیے۔ وقت لے لو مگر دل مت روکو۔ زیمل کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہارے لیے کچھ محسوس کرتی ہوں؟ مجھے لگتا نہیں، یقین ہے۔ اور اگر غلط ہوا تو گینڈا رو پڑے گا مگر مانے گا نہیں۔ زیمل نے پہلی بار اپنی نظریں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں سچائی تھی، شوخی کے پیچھے چھپا ہوا ایک خلوص۔ ٹھنڈی بوندوں نے ماحول کو بھیگتے خواب میں بدل دیا۔ فرقان نے شال اس کے گرد لپیٹی۔ تمہیں سردی لگ جائے گی، مجھے نہیں، تمہیں لگے گی۔ میں تو پہلے ہی تمہارے جذبات کی بارش میں بھیگ چکا ہوں۔ زیمل نے نگاہیں جھکائیں مگر دل کے اندر ایک طوفان اٹھ رہا تھا۔ یہ جعلی رشتہ کب اصلی بن گیا، اسے خود بھی خبر نہ ہوئی۔ کمرے میں واپس آ کر اس نے موبائل کھولا۔ فرقان کا میسج آیا، جعلی ہنی مون ختم مگر اصلی احساسات شروع۔ میں تمہیں مذاق میں نہیں، محبت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ زیمل کے ہاتھ لرز گئے۔ اس نے صرف ایک لفظ لکھا، فرقان، اور بھیج دیا۔ گھر میں آج پھر شور مچا ہوا تھا۔ دادی جان صحن میں بیٹھی اپنا چشمہ ناک پر ٹکائے اخبار کے صفحے پلٹ رہی تھی۔ زیمل کے چہرے پر ناگواری صاف جھلک رہی تھی، جبکہ فرقان حسب معمول ہنسی چھپا رہا تھا۔ دادی جان، آپ کا افریقن گینڈا پھر میری واٹس ایپ لسٹ پہ گھس آیا ہے۔ میں نے کل بلاک کیا تھا، آج پھر کسی نئے نمبر سے آ گیا۔ ارے وہ گینڈا نہیں، ہمارا ہونے والا داماد ہے۔ بلاک کیوں کیا بھائی؟ محبت میں تو رکاوٹ نہیں ڈالتے۔ میں نے تو بس تصویریں بھیجی تھی پچھلے ہفتے کی، تمہیں یاد ہے؟ وہ جب تم نے چکن پیزا میرے منہ پر پھینکا تھا، میں نے سوچا تمہیں یاد دلا دوں تاکہ تم پچھتا سکو۔ زیمل نے غصے سے تکیا اٹھا کر اس پر پھینکا مگر وہ اتنی پھرتی سے بچا جیسے نینجا ٹریننگ لے رکھی ہو۔ فرقان کہا لگا کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ دیکھو بچوں، دادی جان نے اخبار طے کرتے کہا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اب تم دونوں کو ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے پکنک پر بھیج رہی ہوں۔ زیمل نے چونک کر کہا، پکنک؟ وہ بھی اس کے ساتھ؟ فرقان نے مصنوعی سنجیدگی اختیار کی۔ دادی جان، کہیں یہ ریسکیو آپریشن تو نہیں؟ کیونکہ زیمل کے مزاج میں تو اکثر طوفان رہتا ہے۔ دادی نے ڈنڈا اٹھایا۔ چپ، اب کی بار اگر کوئی بہانہ کیا تو میں تم دونوں کو موٹر سائیکل پر بٹھا کر خود لے جاؤں گی۔ اگلے دن زیمل نے نیلا ڈریس پہنا، بال کھلے چھوڑے اور چہرے پر ایک ہی سوچ، یہ دن زندگی کا سب سے برا دن ہوگا۔ جبکہ فرقان سفید شرٹ اور چشمہ لگا کر آیا جیسے کسی فیشن شو میں جانے والا ہو۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی زیمل نے کہا، خبردار جو میرے قریب آئے، میں فرنٹ سیٹ پر بیٹھوں گی۔ فرقان نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، بیٹھ جاؤ، فرنٹ سیٹ تمہاری، مگر اس کے بدلے ریڈیو میرے کنٹرول میں۔ پھر گاڑی چلی تو محبت ہو گئی ہے تم سے والا گانا بجنے لگا۔ زیمل نے آنکھیں گھمائی، واقعی اس موقع پر یہی گانا رہ گیا تھا؟ فرقان ہنسا، ہاں، کیونکہ یہ گانا تمہارے منہ پر بالکل فٹ بیٹھتا ہے۔ پکنک پوائنٹ پر پہنچ کر زیمل نے کافی آرڈر کی۔ فرقان نے سوچا مذاق کرتا ہوں، کافی تمہارے جتنی تلخ نہ ہو جائے کہیں، لیکن جیسے ہی اس نے کپ پکڑا، کپ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر سیدھا زیمل کے ڈریس پر گر گیا۔ فرقان، وہ چیخی، تم نے میری فیوریٹ ڈریس خراب کر دی۔ فرقان نے فوراً اپنا رومال آگے بڑھایا، ارے سوری یار، میرا مطلب وہ نہیں تھا۔ اور جب زیمل نے اس کے ہاتھ سے رومال پکڑا تو پہلی بار اس نے فرقان کی آنکھوں میں وہ سنجیدگی دیکھی جو ہمیشہ مذاق کے پیچھے چھپی رہتی تھی۔ اس لمحے کے لیے سب خاموش ہو گیا، بس ہوا چل رہی تھی اور ان کے درمیان ایک عجیب سا سکوت چھا گیا۔ شام کو جب وہ واپس جا رہے تھے، زیمل نے آہستہ کہا، تمہیں پتہ ہے کبھی کبھی تم اتنے برے نہیں لگتے۔ فرقان مسکرایا، یہی تمہاری سب سے بڑی تعریف ہے۔ زیمل، میرے لیے یہی کافی ہے۔ زیادہ خوش نہ ہو، یہ تعریف نہیں تھی، ایک عارضی رعایت تھی۔ چلو رعایت ہی صحیح،
मोहब्बत भी कभी कभी रियायत से शुरू होती है। जीमल ने रुख मोड़ लिया, मगर उसके चेहरे पर वो खफीफ सी मुस्कुराहट फुरकान की जीत का ऐलान कर चुकी थी। घर पहुंचते ही दादी जान का फोन आया। तो बच्चों, पिकनिक कैसी रही? फुरकान ने शरारत से कहा। दादी जान, मौसम भी गर्म था और जीमल भी, दोनों ने मिलकर मेरा बीपी बढ़ा दिया। और तुम्हारा चेहरा? दादी ने पूछा। वो तो पहले से ही काला है दादी जान, जीमल ने जलकर कहा। दादी जान हंसती रही। बस बस, यही छोटी छोटी लड़ाइयां ही तो बाद में मोहब्बत की चिंगारियां बनती हैं। रात को जीमल बालकनी में खड़ी चांद को देख रही थी। फुरकान नीचे लॉन में बैठा मोबाइल पर कोई धुन बजा रहा था। जीमल के दिल में पहली बार एक ख्याल आया, क्या वाकई यह अफ्रीकन गैंडा सिर्फ मजाक ही था, या कहीं दिल के अंदर कुछ और भी जागने लगा है? सुबह के 8 बज रहे थे। जीमल आंखों पर हाथ रखे नींद के खुमार में थी जब दादी जान की धाड़ गूंजी। जीमल, उठ जा बेटी, आज से हमारी नई पॉलिसी शुरू हो रही है, जीमल ने नींद भरी आवाज में कहा। दादी जान, क्या कोई नया कानून आ गया? हाँ, दादी जान ने जोश से जवाब दिया। अब घर में कोई किसी से भाग नहीं सकता। मैं तुम दोनों को एक ही कमरे में बंद करके देखना चाहती हूं कि मोहब्बत कब तक भाग सकती है। जीमल ने झट से उठकर कहा। क्या? एक कमरे में वो अफ्रीकन गैंडा और मैं? दरवाजे पर मौजूद फुरकान ने चश्मा उतारते हुए कहा। बिल्कुल, और फिक्र मत करो, मैं तुम्हें ज्यादा जगह नहीं घेरने दूंगा। दादी जान ने दरवाजा बंद करते कुंडी चढ़ाई। लो भाई, अब बंद हो जाओ। बाहर तब निकलना जब एक दूसरे का चेहरा देखकर दिल से हाँ निकले। दरवाजा बंद हुआ और जीमल के चेहरे पर हैरत, गुस्सा और थोड़ी सी परेशानी मिली मुस्कुराहट। कमरा बड़ा था मगर फजा अजीब सी। जीमल खिड़की के पास जा खड़ी हुई और फुरकान कालीन पर बैठा मोबाइल पर कोई धुन बजाने लगा। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? दादी ने मजाक में कहा था। तुम वाकई बैठ गए? शर्म तो आती है, मगर तुम्हारे साथ अकेले होने का मौका बार बार नहीं मिलता। बकवास बंद करो वरना तुम्हारा दिल तेज धड़कने लगेगा। जीमल ने गहरा सांस लिया। फुरकान, तुम्हें हर चीज मजाक क्यों लगती है? फुरकान ने एक लम्हे को खामोशी इख्तियार की। क्योंकि अगर मैं मजाक ना करूं तो दिल की बात जबान पर आ जाएगी। जीमल चौंक गई। फुरकान की आंखों में पहली बार वो संजीदगी थी जो किसी सच्चे एहसास की झलक दिखा रही थी। दोपहर में अचानक मौसम बदला, बादल गरजने लगे और फिर तेज बारिश। कमरे की लाइट झपकी और बंद हो गई। ओ नो, जीमल चीखी। ये अंधेरा, ये आवाजें, मुझे डर लगता है। फुरकान ने आहिस्ता से कहा। डरो मत, मैं हूं ना। हटो इधर से, मुझे रोशनी चाहिए। फुरकान ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। उसकी रोशनी जीमल के चेहरे पर पड़ी। बारिश की बू, हवा का झोंका और वो मंजर जैसे किसी फिल्म का सीन हो। देखो जीमल, कभी कभी अंधेरा सब कुछ वाज़ेह कर देता है। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम जब गुस्से में होती हो तो भी खूबसूरत लगती हो, और जब चुप हो जाती हो तो खतरनाक हद तक दिलकश। जीमल का दिल एक लम्हे को रुक गया। फुरकान, तुम कुछ ज्यादा बोल रहे हो आज। हाँ, क्योंकि शायद आज पहली बार दिल बोल रहा है। 2 घंटे बाद दोनों भूखे बैठे थे। दादी जान ने हमें लॉ करके खाना भी नहीं भेजा। जीमल बोली। चलो खुद ही पकाते हैं। कमरे के कोने में एक छोटा किचन एरिया था। फुरकान ने अंडा तोड़ा मगर छिलका भी डाल दिया। जीमल ने हंसते हुए कहा, वाह, तुम्हें शादी के बाद शेफ रखना पड़ेगा। तुम रख लेना, लेकिन शर्त यह है कि तुम जायका चखोगी। मैं कभी नहीं। अच्छा, फिर देखना, तुम्हारे दिल में मेरा जायका जरूर रह जाएगा। जीमल ने चम्मच फेंका। तुम बाज नहीं आ सकते ना? बाज आ जाऊंगा जब तुम कहोगी। फुरकान, बस करो। जीमल के चेहरे पर हल्की लाली दौड़ गई। वो हंसी छुपाने के लिए रुख मोड़ गई, मगर फुरकान ने देख लिया। उसकी हंसी में पहली बार मोहब्बत की झलक थी। शाम ढली तो दादी जान ने दरवाजा खोला। हाँ भाई, मोहब्बत की हवा लगी या अभी भी सर्दी है? जीमल ने फौरन कहा, कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल कुछ नहीं।
फुरकान ने मुस्कुराकर जवाब दिया। जी दादी, बस बिजली चली गई थी और थोड़ा सा दिल भी काबू से गया था। क्या? जीमल ने तकिया उठाया मगर दादी की मौजूदगी में चुप हो गई। दादी जान ने ज़ेरे लब मुस्कुराकर कहा, चलो लगता है प्लान नंबर 3 तैयार करना पड़ेगा। रात गए जीमल बालकनी में बैठी थी। बारिश थम चुकी थी मगर दिल के अंदर कुछ भकोला सा था। फुरकान नीचे लॉन में बैठा था। आसमान की तरफ देखते हुए आहिस्ता बोला, जीमल, अगर कभी तुमने हाँ कह दी ना तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि अफ्रीकन गैंडा मोहब्बत में कितना नरम दिल होता है। जीमल ने ऊपर से झांका। और अगर मैंने ना कह दी? फुरकान ने मुस्कुराकर कहा, फिर भी इंतजार करूंगा, क्योंकि तुम ना कहो या हाँ, मेरे दिल में तुम्हारे लिए एक मुस्तकिल जीमल रह गई है। जीमल खामोश रही मगर उसकी आंखों में नमी चमक रही थी। सुबह का सूरज चमक रहा था मगर जीमल के चेहरे पर अभी भी रात की खामोशी लिखी थी। बालकनी के पर्दे हवा में लहरा रहे थे और नीचे लॉन में फुरकान नाश्ते के बहाने मुसलसल ऊपर की तरफ देख रहा था। दादी जान ने चाय का कप हाथ में पकड़ते मायनी खेज अंदाज में कहा, बेटा फुरकान, आज तुम चाय कम पी रहे हो या ख्यालों में ज्यादा गुम हो? फुरकान ने शरारत से मुस्कुराकर जवाब दिया, ख्यालों में चीनी थोड़ी ज्यादा है दादी जान। दादी ने हंसते हुए कहा, चीनी तो अब जीमल के हाथ की लगेगी। तुम दोनों को आज एक साथ प्रैक्टिकल टेस्ट देना है। जीमल नीचे आई तो दादी ने ऐलान कर दिया, आज से मेरा नया प्रोग्राम शुरू। तुम दोनों को एक दिन के लिए जोड़ा बनाकर कम्युनिटी सेंटर के फलाही प्रोग्राम में भेजा जा रहा है। वहां सबके सामने एक खुशगवार शादीशुदा जोड़ा बनकर रहना है। क्या? जीमल ने चीख कर कहा, मैं और ये शादीशुदा जोड़ा? फुरकान ने चश्मा दुरुस्त करते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें मेरी बीवी कहना प्रैक्टिस कर लेता हूं। बस करो वरना तुम वाकई मेरी बीवी बन जाओगी। दादी ने हंसते हुए हाथ उठाया, बस अब और कुछ नहीं सुनना, जो बोलेगा उसकी शादी फौरन करा दूंगी। फुरकान ने फौरन जबान बंद की। जीमल ने आंखें घुमाई और आहिस्ता से बड़बड़ाई, ये दादी भी ना नेटफ्लिक्स से ज्यादा सस्पेंस डाल देती हैं। कम्युनिटी सेंटर पहुंचने पर दोनों को इस्तकबालिये पर बतौर मेरिट कपल दर्ज किया गया। फुरकान ने मजे से फॉर्म भर दिया। नाम फुरकान अहमद, बीवी जीमल फुरकान। जीमल ने गुस्से से कलम छीना, ये तुमने क्या लिखा? हकीकत को कागज पर ला रहा हूं ताकि किस्मत भी तस्लीम कर ले। अंदर दाखिल होते ही हॉल में जोड़े मुस्कुरा कर तस्वीरें खिंचवा रहे थे। जीमल ने आहिस्ता कहा, ये सब लोग असल में खुश हैं या शो कर रहे हैं? फुरकान ने मुस्कुराकर कहा, भाई हम भी शो कर रहे हैं, लेकिन शायद अंजाम कुछ असली निकले। मुंतजिम ने माइक पकड़ा। अगला मुकाबला, हर जोड़ा अपनी पहली मुलाकात की कहानी सुनाएगा। जीमल ने तड़प कर कहा, मैं नहीं बोलूंगी। फुरकान ने आहिस्ता उसका हाथ पकड़ा, तुम चुप रहो, मैं सब कह दूंगा। वो माइक पर गया और पूरे हॉल में आवाज गूंजी, हमारी पहली मुलाकात किसी फूलों वाले बाग में नहीं हुई थी, बल्कि लड़ाई के मैदान में हुई थी, जहां मेरी होने वाली बीवी ने मुझे अफ्रीकन गैंडा कहा और उसी दिन से मैं उस पर दिल हार बैठा। पूरा हॉल हंसने लगा। जीमल का चेहरा सुर्ख हो गया मगर वो बोली नहीं। फुरकान ने मुस्कुराकर कहा, और आज वही लड़की मेरी सबसे बड़ी सुकून है, चाहे वो अब मुझ पर चीखे, मैं उसे दिल से चाहता हूं। हॉल में तालियां बज गईं। जीमल ने नजरें झुका ली मगर दिल कहीं गहराई में धड़कने लगा। मेले के बाद जब वो दोनों बाहर निकले तो बादल छा गए। फुरकान ने गाड़ी का दरवाजा खोला मगर जीमल रुकी रही। फुरकान, तुमने जो वहां कहा वो मजाक था ना? कभी कभार मजाक इतना सच लगता है कि दिल मानने लगता है। जीमल, और अगर मैं कहूं कि तुम्हारा ये मजाक अच्छा लगा? फुरकान ने कदम आगे बढ़ाया, तो फिर मैं इस मजाक को हकीकत बनाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दूंगा। जीमल ने नजरें चुरा ली। तुम्हारे पास अल्फाज बहुत हैं फुरकान, मगर अमल बस एक इशारा चाहिए तुम्हारी आंखों से, बाकी सब कर दूंगा। वो लम्हा भारी हो गया। बारिश की चंद बूंदें गिरी और जीमल के लबों पर हल्की मुस्कुराहट आ गई।
घर वापस पहुंचे तो दादी जान दरवाजे पर खड़ी थी। वाह भाई, आज तो मेरे अफ्रीकन गैंडे के चेहरे पर मोहब्बत का मेकअप लग रहा है, जीमल ने तेज लहजे में कहा। कुछ नहीं हुआ दादी, बस शो था। दादी हंसी। हाँ, मगर आंखों का शो दिल से नहीं छुपता बेटी। फुरकान ने मुस्कुराकर दादी के कान में आहिस्ता कहा। दादी, प्लान कामयाब हो रहा है, अब आखिरी चाल बाकी है। रात को जिमल ने ख्वाब देखा कि वो बाग में खड़ी थी बादलों के बीच और फुरकान उसके करीब आ रहा था। वो मुस्कुराकर कह रहा था, जिमल तुम भागो चाहे जितना, एक दिन रुकना तुम्हें मेरे पास ही पड़ेगा। वो चौंक कर जाग गई। दिल तेजी से धड़क रहा था। या अल्लाह, ये ख्वाब क्यों? ये गैंडा मेरे दिमाग में भी आ गया। मगर आईने में देखते ही खुद ही हंस पड़ी। ये तो कुछ हो रहा है मेरे साथ। दादी जान ने नाश्ते की मेज पर एक बम गिराया। मैंने फैसला कर लिया है, अगर जीमल और फुरकान अगले 3 दिनों में एक दूसरे को ना कहे बगैर साथ गुजार लेते हैं तो मंगनी फौरन कर दूंगी। जीमल ने चाय का घूंट लेते लेते कहा। दादी, ये कोई रियलिटी शो नहीं है तो, और इसका नाम है मोहब्बत का इम्तिहान, फाइनल राउंड। फुरकान ने मुस्कुराकर कहा। मैं तो तैयार हूं, बस देखना है कौन पहले दिल हारता है, जीमल या मैं। जीमल ने ज़ेरे लब कहा। शायद मैं पहले ही हार रही हूं। दादी जान के ऐलान ने पूरे घर को एक छोटे से जंगी मैदान में बदल दिया। हर कमरे में घंटी, टाइमर और कैमरे जैसी संजीदगी, जैसे कोई रियलिटी शो शुरू होने वाला हो। जीमल ने आईने के सामने खड़े होकर खुद से कहा, ठीक है जिमल, तुम 3 दिन बर्दाश्त कर सकती हो। ये गैंडा तुम्हें मोहब्बत में नहीं बल्कि पागल खाने में भेजने के लिए काफ़ी है। उसी लम्हे दरवाज़ा खुला। फुरकान हाथ में ट्रे लिए अंदर आया, जिसमें चाय, पराठे और मुस्कुराहट रखी थी। सुबह बखैर मोहतरमा, दादी ने कहा है तुम्हारी खिदमत मैं करूँगा। तुम्हें नाश्ता दूंगा और अगर तुमने कुछ गिराया तो दिल भी संभालूंगा। जीमल ने भवें चढ़ाई कि ये सब तुम्हारे टेस्ट हैं, याद रखना, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करने वाली। फुरकान ने चाय मेज पर रखते हुए कहा, प्यार तो मैं कर लूंगा, तुम चाहो या ना चाहो, बस दुआ करो कि मैं चाय ना गिरा दूं, वरना ये दिल भी साथ ही बह जाएगा। दादी जान ने एक लिस्ट दी। टास्क नंबर 1, साथ मिलकर दोपहर का खाना बनाना। टास्क नंबर 2, शाम को एक दूसरे की खूबियों की फहरिस्त लिखना। टास्क नंबर 3, रात को दिल से एक सच बोलना। जीमल ने दादी की तरफ देखा। ये सब मोहब्बत का इम्तिहान है या नर्क का? बेटी, नर्क वही जीतता है जो मोहब्बत का मजा समझ जाए, दादी ने हंसकर कहा। किचन में दोनों आमने सामने। जीमल सब्जी काट रही थी, फुरकान चिकन मैरिनेट कर रहा था। ये नमक ज्यादा ना डाल देना फुरकान, अगर तुम मेरी जिंदगी में इतनी दखल देती तो मैं पहले ही जायकेदार बन जाता। जीमल ने चम्मच मेज पर मारा। तुम्हारे हर जुमले में फ्लर्ट क्यों होता है? क्योंकि तुम्हारे हर गुस्से में मुझे मोहब्बत नजर आती है। मोहब्बत? वो लफ्ज तुम्हारे लिए मजाक है फुरकान। फुरकान ने खामोशी से उसकी आंखों में देखा। मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए सच है। जीमल का हाथ लम्हा भर को रुक गया, फिर उसने नजरें झुका ली। चलो सालन जला दो, रोमानवी मुकालमे बाद में कहना। रात को दादी ने दोनों को कागज दिए। जीमल ने दिल ही दिल में सोचा, इसमें तो एक भी खूबी नहीं है, मगर जैसे ही उसने लिखना शुरू किया कलम खुद चलने लगा। फुरकान जिद्दी है मगर किसी को दुख में नहीं देख सकता। वो मजाक करता है मगर हर हंसी के पीछे एक नरमी है। वो खुद गर्ज लगता है मगर दूसरों के लिए खुद को भूल जाता है। उसने फौरन कागज लपेट दिया, खुद को टोका। ये क्या कर रही हो जीमल? तुम तो उसे पसंद नहीं करती है ना? उधर फुरकान ने अपनी फहरिस्त लिखी। जीमल गुस्से में भी प्यारी लगती है। वो कुछ ना कहे तो भी दिल उसकी बात सुन लेता है। और सबसे बड़ी खूबी, वो मेरी जिंदगी में आई, बस यही काफी है। दादी जान सहन में झूले पर बैठी दोनों से बोली, चलो भाई, अब दिल का एक सच सुनाओ। झूठ बोलोगे तो दिल तुम्हारा नहीं रहेगा। जीमल ने फुरकान की तरफ देखा और धीरे से कहा, मेरा सच यह है कि तुम बहुत तंग करते हो, मगर जब तुम चुप हो जाते हो तो दिल घबराता है।
फुरकान ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, मेरा सच ये है कि तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत उलझन हो, जिसे मैं कभी सुलझाना नहीं चाहता। दादी ने तालियां बजाईं। वाह वाह, ये दोनों तो अब फिल्मी जोड़ा बनने वाले हैं। अगले दिन बारिश ने शहर को घेर लिया। बिजली गई और दादी ने हंसते हुए कहा, अब तुम दोनों साथ बैठकर मोमबत्ती की रोशनी में वक्त गुजारो, मोहब्बत की चिंगारी को थोड़ा जलने दो। जीमल ने तंजिया अंदाज में कहा, जी हां, अब तो गाना भी लगा दे, मोहब्बत बरसा देने आ। फुरकान ने वाकई मोबाइल पर वही गाना चला दिया। फुरकान, तुम पागल हो? पागल तो तुमने कर दिया है जीमल, अब इलाज नहीं है। वो दोनों चुप बैठे रहे। बारिश के कतरे खिड़की से अंदर आ रहे थे। जीमल ने आहिस्ता से कहा, कभी कभी सोचती हूं अगर मैं तुम्हें पहले मिली होती तो शायद जिंदगी आसान होती। फुरकान ने धीरे से जवाब दिया, जिंदगी आसान नहीं, खूबसूरत हो जाती, क्योंकि तुम उसमें होती। जीमल खामोश रही, मगर उसके चेहरे पर वो पहली सच्ची मुस्कुराहट थी जो किसी दिल के नरम होने का ऐलान कर चुकी थी। तीसरे दिन दादी ने सुबह ही ऐलान कर दिया, आज फैसले का दिन है, और अगर आज तुम दोनों ने ना कह दी तो शादी का ख्वाब खत्म, और अगर खामोशी रही तो मैं मंगनी की तारीख रख दूंगी। जीमल ने आहिस्ता से कहा, यह तो धमकी है दादी। मोहब्बत कभी धमकी से नहीं, दबाव से सच हो जाती है। दादी ने आंख मारी। दिन गुजरता गया। दोनों खामोश रहे, कोई इनकार किया ना इकरार। रात आई, चांदनी, हवा, और एक लम्हा ऐसा आया जब फुरकान लॉन में आकर रुक गया। जीमल, हाँ, अगर मैं वाकई तुम्हें चाहने लगा हूं तो तुम पागल हो गए हो, और अगर तुम भी मुझे चाहने लगी हो तो शायद मैं भी पागल हूं। फुरकान मुस्कुराया, तो फिर पागलों की ये कहानी दादी जान मुकम्मल कर देंगी। उसी वक्त दादी जान बालकनी से चिल्लाई, बस यही सुनना चाहती थी मैं, कल मंगनी है तुम दोनों की। जीमल ने मुंह छुपाया, मगर दिल के अंदर जो तूफान था वो अब सुकून बन चुका था। मंगनी के दिन फुरकान ने जीमल से आहिस्ता कहा, याद है जब तुमने कहा था मैं काले मुंह वाला गेंडा हूं? हाँ, और आज भी हो। फर्क बस इतना है, अब वो गेंडा तुम्हारे दिल का बादशाह है। जीमल ने मुस्कुराकर कहा, और तुम्हारी ये बातें ही मुझे हंसने पर मजबूर कर देती हैं। शायद इसीलिए मैं तुमसे प्यार करने लगी हूं फुरकान। दादी जान ने मुस्कुराते हुए अंगूठी पहनाई। लो भाई, मोहब्बत का इम्तिहान मुकम्मल, और अफ्रीकन गेंडा कामयाब। पूरे घर में कह कहे गूंज उठे, और जीमल के चेहरे पर वो चमक थी जो सिर्फ मोहब्बत के जीतने वालों के पास होती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।